Good morning, student. In this lecture, we discuss the example of the histogram processing. In the previous lecture, we already discussed about what is a histogram and how to plot a histogram. If we have any image and we easily can draw with the gray level values and with the comparison of the number of pixel, we draw a histogram of that image. We enhance that image by using the histogram equalization. So next we discuss about the difference between the histograms of the low contrast, normal and the high contrast values. Here is the histogram for the blurred image and the HD image, more contrast image, and we draw the histograms like this. This is the histogram for the 8-bit the 8-bit intensity level image, which shows the original image and then transformation function, and this is the equalized histogram. So next we have the example of the histogram equalization, how we perform, how we can draw, and how we calculate the equalization of histogram. So we have given the number of gray level. Gray levels are given from 0 to 7, and we have the number of pixel like 790 for the 0 gray level, for the 1 gray level 1023, and up to so on. They are the number of values or the number of pixels for each gray level. So what we have to do is to uh, to make the normalized histogram, that is the enhanced version of the image. So the histogram के लिए क्या है कि ग्रे लेवल को हम एक टेबल में क्रिएट करेंगे. एक ग्रे लेवल नंबर ऑफ वैल्यूज़ गिवन है 0 to 7, नंबर ऑफ पिक्सल्स वो भी गिवन है. सो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स हम निकाल सकते हैं विद द सम ऑफ ऑल द नंबर ऑफ पिक्सल. तो सम क्या आ गया अब 4096, दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल. ना probability डेंसिटी फंक्शन हम कैसे निकालते हैं विद द नंबर ऑफ पिक्सल्स divided by the total number of pixel. So the probability function, that is nk divided by n, number of pixel for the gray level 0 is 790, which is calculated by the probability density function is calculated by 790 divided by 4096, that is the total number of pixel. तो वैल्यू क्या आती है 0.19. सिमिलरली फर्स्ट ग्रे लेवल के लिए the number of pixel value is 1023, which is divided by 4096, the total number of pixel, because we have the formula for the probability density function, that is nk divided by n. n के यहाँ पर क्या था नंबर ऑफ पिक्सल, एंड n क्या है टोटल नंबर ऑफ पिक्सल. टोटल नंबर ऑफ पिक्सल क्या है सभी का सम करके जो वैल्यू आई, नंबर ऑफ पिक्सल्स गिवन होंगे उनका सम कर लेना है. देन सेकंड वैल्यू कैलकुलेट की, डेट इज़ 0.25. सिमिलरली थर्ड क्या है 850 फॉर द ग्रे लेवल 2. 850 डिवाइड बाई 4096, द वैल्यू बिकम्स 0.21. सिमिलरली हम बाकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे. एंड फॉर द हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, when we calculate the probability density function, तो probability density function जो निकाल लेते हैं वैल्यू, उसका सारा जो सम होता है डेट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1. सो ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है. सो जब अगर इनका सम जो 1 आता है दैट इज़ द करेक्ट आंसर. सो यहाँ तक क्या किया हमने कि ग्रे लेवल गिवन थे, नंबर ऑफ पिक्सल गिवन थे, नंबर ऑफ पिक्सल्स से हमने टोटल नंबर ऑफ पिक्सल निकाले. देन वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पिक्सल बाय the total number of pixel, and whose the probability density function all the components summation is equal to 1. So next is the cumulative density function. cumulative density function को हम कैसे निकालते हैं. सो द फर्स्ट वैल्यू रिटर्न सेम 0.19, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 0.25. सो
फर्स्ट एंड सेकंड को सम कर देना है, डेट बिकम 0.44, कॉमुलेटिव में एडिशन ऑफ द प्रीवियस वैल्यू लेते जाएंगे। सो नेक्स्ट इज 0.21, तो 0.44 में हमने 0.21 को ऐड कर दिया, डेट बिकम 0.65। नेक्स्ट इज 0.16 को किस में ऐड करना है, प्रीवियस वैल्यू जो आगे 0.65, तो वैल्यू बिकम 0.81। 0.08 को 0.81 में ऐड किया, डेट बिकम 0.89। देन अगेन हमने 0.06 को 0.89 में सम किया, डेट बिकम 0.95। नेक्स्ट इज 0.03 को 0.95 में सम किया, डेट इज 0.98। एंड अगेन 0.02 को 0.98 में सम किया, डेट इज 1। सो द कॉमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन एंड में क्या आ गया हमारा 1। सो दीज वैल्यूज आर टू बी यूज्ड इन विच द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फर्स्ट वैल्यू रिमेन्स द सेम एंड सेकंड क्या है, प्रीवियस वैल्यू को आगे से आगे क्या करी जाना है, सम करी जाना है, डेट इज़ अ कॉमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। सो हमारे पास तीन वैल्यूज ऑलरेडी आ चुकी है। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट L-1 इंटू सी डी एफ क्या है, कॉमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। L-1 क्या है, ग्रे लेवल वैल्यू, इंटेंसिटी वैल्यू, डेट इज 7। सो यहाँ पर वैल्यू क्या लेंगे हम, 7, जितनी वैल्यू यहाँ पर है, बिकॉज L क्या है, L यहाँ पर है ग्रे लेवल, टोटल ग्रे लेवल वैल्यूज कितनी है, 0 इंक्लूडिंग 8। सो 8 - 1 बिकम 7। सो 7 वैल्यूज टू बी यूज। अगर 0 से लेके 14 तक होता तो यहाँ पर क्या वैल्यू होती, 14। 0 से लेके 18 तक होता तो यहाँ पर वैल्यू होती 18। सो 7 इंटू 0.19, तो वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई करके CDF को हम वैल्यू सारी की सारी ये है निकाल लेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव द पॉइंट्स, न्यू पॉइंट्स आर टू बी a calculator for the normalized histogram, that is also the histogram equalization। सो यहाँ पर वैल्यूज़ क्या है, राउंड ऑफ वैल्यू निकाल ली, 1.33 1, 3.08 की 3, 4.5 क्या है 5.5 से आगे जो है वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, बाकी सारे रिमेन द सेम। सो 5 6 6 7 7 7। सो दीज आर द राउंड ऑफ वैल्यू। तो फाइनली हमारे पास जब हम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के लिए इमेज को क्रिएट करेंगे, देन दैट इन्हांस्ड इमेज इज यूज द नंबर ऑफ पिक्सल्स लाइक दिस। तो ग्रे लेवल तो सेम ही रहेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 7 तक ही रहेंगे, बट द नंबर ऑफ पिक्सल्स चेंज। तो यहाँ पर 1 वैल्यू आई, विच मीन्स डेट 0 पे कोई भी नहीं वैल्यू, तो 0 की 0 आ गई। नेक्स्ट वैल्यू राउंड ऑफ वैल्यू क्या आ गई 1, तो 1 पे फर्स्ट कौन सा, पहले नंबर पे कौन सा पिक्सल आ रहा है, 790, तो 790 यहाँ पर वैल्यू साइन हो गई। सो नेक्स्ट इज 2 वैल्यू इज एबसेंट, बिकम्स ग्रे लेवल 2 वैल्यू इज 0। नेक्स्ट इज 3, नेक्स्ट नंबर ऑफ पिक्सल वैल्यू कौन सी आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करते जाना, जो जो आती जाती है। तो 1023 है तो थर्ड पे आ जाएगी 1023, फोर्थ वैल्यू एबसेंट है तो इट बिकम्स 0। फिफ्थ वैल्यू क्या आ जाएगी, 1023 के बाद में कौन सी थी, 850, 850 आ गया, 6 2 टाइम्स है तो 850 के बाद 656 एंड 329, दो वैल्यूज़ है, दोनों को यहाँ पे सम कर दिया। नेक्स्ट इज 7 3 टाइम्स है, नेक्स्ट जो वैल्यूज़ आती है उनका सम कर दिया, जो वैल्यूज़ आएगी डेट आर द न्यू नंबर ऑफ पिक्सल वैल्यूज़ for that image with the gray levels from 0 to 7. So this is the example for the histogram equalization. We can easily calculate all the point. We have the formula, that is the we already discussed with the L-1 integration of 0 to R, L-1 CDF. So we have to calculate all the point with the probability density function, then the cumulative density function, and then we have to calculate the round off value. From that we easily calculate the number of pixels.